Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friend, this video is very important for all of you guys who all are going to join the company in the upcoming days and who already got their offer letter. Okay, so this is the first video I'm going to upload on YouTube, and if you search on YouTube this type of video, you will not get it on YouTube platform. But I'm sharing this information is first time in YouTube, that all about teachers pre-mapping process, how they pre-map teachers project allocation, latest updated process, pros and cons of pre-mapping in TCS, total how many pre-mapping units is there, from where I can check my project and unit and training, EIS, IoT, DE, BFISI unit, support role or development role, how to choose good project domain, rating, resume and skills. So without any further delay, let's begin this video. बता दो फ्रेंड, ये वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो प्लीज आप लोग एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, और ज्यादा अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना. एंड डोंट वरी, whatever I'm telling this particular video, I will show the particular in English text also, so that you all can read the line if you are not able to understand as a Hindi language. Okay, so let's start. So first of all, you can see on my screen, once you got their offer letter, now you will receive a joining letter from the TCS team. For joining letter and onboarding letter, it will take from 1 month to 1.5 years also. Okay, so once you got the joining letter, you will see over there you are going to get one option called pre-mapped. Okay, so here you can see there is a no option. Here you can see that the role is mentioning and the like reporting timing there. Okay, and once you check, you can see this is a TCS experience program. So अगर आपने कंप्लीट कर रखा है नहीं कर रखा है डजंट मैटर, बट ये आपका ऑफर लेटर में ऑटोमेटिक ये मेंशन किया रहेगा. अब नेक्स्ट बात करते हैं फिर, यहाँ पर आप लोग में देख सकते हो related to which is better field in TCS, IT infrastructure services or application development and maintenance. IT infra, if you want to just sit around solving ticket raised by TCS employees, note that this might sound like a chilled out, but there is a no future in it. It won't be add any weightage in your resume. Application development on the other side is for people interested in coding. It demands more for you but it helps in long run. Okay, तो develop इस पे इसका नाम सिंपल है फ्रेंड. अगर आप लोग डेवलपमेंट फील्ड में जाते हो, there is a more scope, and if you are going for the service, then it's a very less chances. So how they pre-mapped, I will discuss in next slide also. Okay, so you can see, so this is a two type of joining letter you can see on my screen. This is for assistant system engineer trainee and assistant system engineer trainee. You can see grade Y and grade Y. One joining letter you will see over there, the particular candidates assigned. You can see you will be assigned the role of engineering and industrial service and Internet of Things, EIS and IoT units, which is subject to change as per the business requirement. And second, you can see you will be a part of application development and maintenance project. Are you getting a point? So this is for the EIS and IoT, and this is for the application development and maintenance project across any business units of the TCSL. Okay, so sir, how they pre-mapped? So फॉर लाइक एक लाइन में मैं आपको बोलूंगा तो ये टोटली उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. मान लो आपके पास जावा सर्टिफिकेशन है, आपका कोडिंग बहुत अच्छा है, डजंट मैटर, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग विथ यू गाइस, लाइक आप लोगों ने कितना भी सर्टिफिकेशन कर रखा हो, कितना भी आपका स्किल्स का है ना हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता. हाँ, डिजिटल हो तो वो चलता है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है. बट निंजा में जा रहे हो तो आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग जावा में तो जावा में आपको मिलेगा प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है. आप लोग अगर जब चेंज भी करोगे ना अपने एचआर को बोल के, तो वो बोलेंगे कि दिस इज अ लाइक सिंपल बोलेंगे कि यहाँ पर आपको हर चीज सीखना पड़ेगा. सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दी थिंग्स लाइक प्रोजेक्ट चाहे सपोर्ट का हो चाहे वो कोडिंग का हो. सो द प्रोजेक्ट एलोकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन द टीसीएस बिजनेस रिक्वायरमेंट, टीसीएस बिजनेस नीड्स, टीसीएस प्रोजेक्ट डिमांड्स. जो भी उनका प्रोजेक्ट आएगा आपको वो एलोकेट कर देंगे. मैटर नहीं करता कि आपका कोडिंग कितना अच्छा हो, लेकिन आपको सपोर्ट रोल में वो देंगे तो आपको उसमें काम करना पड़ेगा. आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, हम लोग चेंज कर लेते हैं एचआर को बोल के. आपने तो बोला था कि हम लोग एचआर को बोल के चेंज कर सकते हैं, बट मेक्स योर फ्रेंड, अगर आप लोग निकल जाते हो सपोर्ट रोल से, आप लोग बेंच पर रहोगे, तो बेंच पर मत रहना. अभी बेंच पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, चाहे वो आप टीसीएस से बात करो, चाहे वो कैपजेमिनी हो, चाहे वो कॉग्निजेंट हो, चाहे विप्रो, चाहे इन्फोसिस हो. बेंच पर कभी मत रहना. अब बेंच मतलब होता है क्या है, आप लोग कंपनी तो ज्वाइन कर लियो, आपको सैलरी तो मिल रहा है, बट आप प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हो. प्रोजेक्ट में आपको रहना जरूरी है. तो डजंट मैटर आप लोग को सपोर्ट रोल मिल रहा है, टेक्निकल रोल, डेवलपमेंट रोल मिल रहा है, व्हाट एवर रोल यू आर गेटिंग, जस्ट स्टार्ट योर वर्क. मत सोचो कि मेरा सर कोडिंग में, अगर आप लोग अपने सीनियर से बात भी करोगे जो 5-6 साल काम कर चुके हैं, वो लोग भी आपको यही बात बोलेंगे कि मैं भी जब आया था मेरा कोडिंग अच्छा था, बट उन्होंने मुझे सपोर्ट रोल में डाला, अभी मैं कोडिंग में अच्छा कर रहा हूँ. तो आप लोग का प्रोजेक्ट चेंज होता रहेगा. ऐसा नहीं कि आपको केवल कोडिंग, आपको सपोर्ट, मान लीजिए आपको सपोर्ट मिल गया, इनको अच्छा खासा मिला EIS, ऐसा नहीं कि इनको बाद में ये रोल नहीं मिलेगा. ये रोल मिल सकता है, डिपेंड करता है. ठीक है,
अब BFSI क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस एंटरप्राइजेशन होल्ड अबंडेंट डेटा, एनालाइजिंग दिस डेटा वी कैन जनरेट बिजनेस इनसाइट फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस, बेसिकली सपोर्ट रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्री मैपिंग इन टीचर्स इज अ प्रोसेस वेयर द कंपनी असाइन अ न्यू एम्प्लॉय टू अ स्पेसिफिक यूनिट और प्रोजेक्ट बिफोर दे कैन स्टार्ट वर्किंग। दिस इज डन in order to ensure that the employee is placed in a role that it is good fit for their skills and interest. There are few different units that employee can be pre-mapped in teachers. Some of the most popular units included IT. This unit is responsible for developing and maintaining teachers IT in system. EIS. This unit is responsible for developing and implementing teachers enterprise information system. BFSI, this unit is responsible for providing IT services to the banking and finance service industry. Retail, this unit is responsible for providing IT services to the retail industry. And the healthcare, responsible for the healthcare industry. सो ज़्यादातर बता दो फ्रेंड, आप लोग टीसीएस में आप लोग ये मत सोचना कि आपका ये प्रोडक्ट बनाने के लिए देखिए, देखो टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंशियल, ये सारे की सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो आप लोग ये मत समझना कि आप लोग कोडिंग करके कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करोगे, नहीं। अगर आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, अगर आपको कोडिंग में कुछ करियर बनाना है, तो अमेजोन में जाओ। ये सारी कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी है। आप लोग कितना अच्छा कोडिंग ही क्यों ना कर लो, लेकिन लास्ट में आपका जब प्रोजेक्ट का वो टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो बाद में आपको कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट, आपको सपोर्ट रोल देखने को मिलेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग टीसीएस में हो तो आप लोग सोचो कि हम लोग तो कोडिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक कोडिंग एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स करते हैं, आप लोगों का 3-4 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, the best unit to choose will depend on your individual skills and interest. If you are interested in developing software, then the IT unit may be a good fit for you. If you are interested in working on enterprise information system, then the EIS unit may be good for it for you. And if you are interested in working in specific industries such as banking or retail, then the corresponding unit may be good for you. It is also okay if you don't choose anything until onboarding and let the organization choose. The organization will take your skills and interest into account when making decision about where to place you. तो यहाँ कहीं ना कहीं मैटर करता है यस कि आप लोग का वो स्किल्स कहीं ना कहीं देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्लेस करते हैं। बट 99% आप लोग का स्किल्स देखा नहीं जाता, 1% ही वो लोग चूज करते हैं कि अच्छा बंदे को अच्छा इस बंदे को जावा आता है, नो देते जावा, ऐसा नहीं होता है। 1% चांसेस है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स को लेकर। प्रोज में क्या है, pre-mapping can help ensure that you are placed in a role that is good for your skill interest. It can be help you get started on your career sooner. Pre-mapping can also help you to build a relation with the other employee in the unit. Cons में क्या, you may not have such a control over where you are placed. Okay, you may not have able to choose your preferred unit. समझ सकते हो? Pre-mapping can be stressful as you may not know where you are being placed until the last minute. Okay, the best unit मैं तुम्हें बता दिया आप लोग को। Okay, व्हाट इज एआई आईओटी में क्या होता है बता दो फ्रेंड। ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मतलब 50% मान सकते हैं आप लोग। ए स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज। इट इज अ डिवीजन ऑफ टीसीएस व्हिच ऑपरेट्स डिफरेंटली देन आईटी सेक्टर। देयर आर मेनी रियल टाइम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन। सो इफ यू आर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड डोंट वांट टू एंड अप डूइंग आईटी जॉब्स, देन इट्स राइट डोमेन फॉर यू। आईओटी इज अ ग्लोबल थिंग, आप लोग पता होगा। It stands for Internet of Things or a general cloud-based IT solution. When it comes to TCS, there are many innovative projects comes under this technology which are successfully in operation. TCS has an innovation lab to research on this technology in this time when almost everything is shifting toward cloud computing. This technology is the future of the computing along with the AI and machine learning. Okay, this is the best unit I can say. In simple term, both provide much better project and knowledge platform to work with you as part of the any of these domains. नेक्स्ट आपका आता है IoT एंड DE। IoT एंड DE ऑफरिंग इंक्लूड अ सेट ऑफ एसेट। अगर आप लोग गूगल सर्च करोगे टीसीएस का आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ। Solution platform and services that span IoT spectrum and not underpinned by an integrated approach. Our offering help organization leverage IoT effectively to unlock business values. Okay, तो ये सारे यूनिट्स होते हैं और ये सारा डिपेंड करता है उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे। आप लोग को भी देती है कंपनी मौका, पहले देती थी, अब नहीं देती है मे बी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग को ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर हाउ टू चूज मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। डिपेंड करता है आपको जो मिल रहा है वो से ले लो, पेज पर मत रहना, सिंपल लैंग्वेज है। और हाँ, जो मैंने बताया उसके आप लोग भी गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। रेटिंग आने का डिपेंड करता है आप लोग अभी किस प्रोजेक्ट में हो, बाद में आपको चेंज भी हो सकता है। तो आप लोग मत सोचिए कि मैं दोस्त तो कोडिंग कर रहा, मैं तो सपोर्ट रोल में आ गया। आप लोग कभी भी जंप हो सकते हो। आप लोग को कंपनी जब ज्वाइन कर लेते हो ना, तो आपको सर्टिफिकेशन करने का मौका मिलता है। आप लोग सर्टिफिकेशन करके, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करके, आप लोग प्रोजेक्ट का मतलब अलग से आप लोग पढ़ाई लिखाई करके, आप लोग अपने रिज्यूमे में अपडेट करके, आप लोग नए नए प्रोजेक्ट के लिए मतलब टीसीएस में ही नए प्रोजेक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। सो हियर इज दिस इज हाउ द टीसीएस प्रोजेक्ट लोकेशन वर्क्स।
आफ्टर गेटिंग योर ऑफर लेटर। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। कुछ डाउट्स है कमेंट में पूछ लेना। और पीआरए आईआरए के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पीआरए आप लोग जब प्रोजेक्ट आपका लोकेशन होगा, उसके ऊपर एग्जाम होगा, पीआरए का प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका आईआरए जो आप लोग आईपी जो पहले देते हो एग्जाम, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है 40,000 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर वीडियो। कुछ डाउट है कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।